A very good morning to everyone and welcome to the Dhan session today. So, first of all, a very happy Vishkarma Puja to everyone. So, today we are in the third session of the topic that we started, which is excellence in performance through self empowerment. And for the session today, we have Sister Shivika joined us. So, I'll quickly introduce her. Sister Shivika is a dedicated member of the Prajapita Brahmakumaris Ishwariya Vishwavidyalaya, as well as the headquarters coordinator for the education wing. She is also the program coordinator and facilitator of VIP conferences, workshops, and retreats at the headquarters of Brahmakumaris in Mount Abu. She is born and brought up in Ghaziabad and has completed BTech in Electronics and Communications, MBA in Customer Relationship Management. She's also done her MSc in Value Education and Spirituality, as well as a PG Diploma in Values in Healthcare. She's also served in the corporate world for around 3 years as a senior software engineer with Birlasoft. After working for 3 years, she had this deep desire to dedicate her life to services with the Brahma Kumaris. She has been the coordinator for many VIP conferences, retreats, training programs, and educational campaigns on various topics such as education for stress-free life, new knowledge for a new society, self-sovereignty through meditation, and many more. She was also one of the producers of Navsrijan Aqua Laser Show installed at the Brahmakumari's Dadi Parakshmani Wisdom Park in on the Mount Abu Road. She has also contributed to launch the Jal Jan Abhiyan nationwide through the Brahma Kumaris with collaboration with the Ministry of Jal Shakti. Didi, on behalf of everyone, I'd like to welcome you today to Utthan. Om Shanti and over to you. Om Shanti. Am I audible? Okay. So nice to see all of you today. And as I was told by Sister Sangeeta, that all of you are joining here from, I think, the staff member or the employees of Jindal Group. And it is so nice that you all are, joining every week for this session. These sessions are really helpful. तो आई थिंक कब से चल रहे हैं आप सभी के ये सेशंस? It has now been around 3 years, Didi. 3 years. So lovely, so nice. So मुझे लगता है कि आप सब पहले से ही बहुत एम्पावर्ड होंगे. 3 साल में बहुत सारा समय हो जाता है और बहुत सारी बातों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं. So hopefully I will be just, and I think all of you might be aware of all the spiritual nuances and the beauty that spirituality, plays in our life. So I will be just sharing my experiences and my views regarding this topic, which was given to me, excellence in performance through self-empowerment. So when we talk about self-empowerment, what comes in our mind? Self-empowerment in today's world, people feel that we should be financially powerful or a status wise or a position wise, we need to have a good repo. हमारी अच्छी पोजीशन होनी चाहिए, हमारा अच्छा स्टेटस होना चाहिए, तो हम एम्पावर्ड हैं, क्योंकि we need the physical power also, which is very important. हाँ, वही काम करती है आज की दुनिया में, तो वो पावर बहुत काम करती है, द मटीरियलिस्टिक पावर, दैट एज वी से इट. एंड देन व्हाट वी जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में देखा, बहुत लोगों से हम मिलते हैं, चाहे वो किसी पोस्ट पोजीशन वाले हैं, बड़े हैं, तो सबसे हम मिलते हैं. और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी जाते हैं, तो उनके पास बहुत कुछ होता है, उनके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनके पास बहुत पावर है, बहुत चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में एक शक्ति की कमी हमें दिखाई देती है हर एक के अंदर. और वो शक्ति हर कोई ढूंढता है, पाने की कोशिश करता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी व्हाट इज लैकिंग बिहाइंड, कौन सी चीज़ है जो पीछे छूट रही है, जिसके लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है.
तो जैसे हम कहते हैं ना, एक राजा भी क्या करता है, मंदिर में जाकर के भगवान के आगे झोली फैलाता है। तो वो झोली फैलाता है कि मेरी झोली में भगवान ये तुम डाल दो। है, कहने को वो राजा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो झोली फैला करके खड़ा है। तो हम ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो वो बहुत, हम कहते हैं कि ये हमारी ह्यूमिलिटी है, हम बहुत हम्बल हैं कि हम हर एक के आगे हाथ फैलाते हैं। लेकिन जब हम सेल्फ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो सेल्फ एम्पावरमेंट में ये है कि हम किसी की से भीख नहीं मांगते हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। हम खुद इतने एम्पावर्ड हैं कि हम, हमारे अंदर नम्रता जरूर होती है, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी जरूर होती है, हम एक्नॉलेज करते हैं, दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हम किसी के आग से भीख नहीं मांगते हैं, गिड़गिड़ाते नहीं हैं हम किसी के लिए। हम, ऐसा नहीं है कि हम, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, क्योंकि परमात्मा के साथ भी जितने सारे सेशंस आप सबके हुए हैं, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि ईश्वर के साथ भी हर मनुष्य आत्मा का एक बहुत यूनिक रिश्ता है। वी हैव अ रिलेशनशिप ऑल टुगेदर। इट्स नॉट जस्ट कि वो बहुत हाईएस्ट लेवल पे है और हम बहुत लोएस्ट लेवल पे हैं। तो हमें हमेशा जो है भगवान को यही समझना चाहिए, या किसी को भी यही समझना चाहिए बड़े उसमें, कि भाई हम तुमसे छोटे हैं, तुम हमसे बड़े हो। जब ईश्वर जैसी शक्ति भी हमको एक एक समान दृष्टि से देख करके हर एक को तब हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप में बातें करती है, तो हम लोकली यहाँ पर इस धरती पर रहते हुए भी हर व्यक्ति के साथ हमारा आत्मिक रूप से ऐसा कनेक्शन होना चाहिए जिसमें हम खुद एम्पावर्ड हैं, और दूसरे जो है वो भी हमसे शक्ति प्राप्त करे, चाहे वो किस भी लेवल पे हो। तो मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है कि हम मन से कितने शक्तिशाली हैं, मन से हम कितने एम्पावर्ड हैं, मन से हम कहीं दुखी तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, या सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी, सब कुछ हमारे पास होने के बाद भी, क्या हमारे अंदर अभी भी ऐसा कोई डिजायर आता है कि ये और मिल जाता तो अच्छा होता, ये और मेरे पास होता तो बहुत अच्छा होता, और उसके लिए मैं भागना शुरू कर रहा हूँ कि ये नहीं मिला है, ये तो मिल गया, ये नहीं मिला है, तो आज मेरी जिंदगी जो है अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी मुझे ये चाहिए। तो फिर एक बात और आती है जो बहुत लोग पूछते हैं, स्पेशली आप जैसे एम्प्लॉयज जो हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो काम करते हैं, हमारे भाई बहन, वो लोग हमसे पूछते हैं कि व्हाट अबाउट प्रोग्रेस, कि अगर हम, हमारे अंदर ग्रीड नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी किसी चीज को प्राप्त करने की, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई ग्रीड ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई मोटिव ही नहीं है, कोई एम नहीं है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये पाना है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? और फिर अगर हम सेटिस्फाइड हो गए, अंदर में कंटेंट हो गए, तो हम जो है कभी भी आगे बढ़ कर के किसी चीज को बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वहीं रुक जाएंगे, हमारी प्रोग्रेस वहीं रुक जाएगी। लेकिन जब आप देखो कि सेटिस्फाइड होकर के, कंटेंट होकर के जिस चीज, किसी भी चीज का निर्माण किया जाता है, तो उसमें ज्यादा इनपुट हमारा जाता है, ज्यादा इनपुट जाता है हमारे अंदर। लालच इसलिए नहीं कि मुझे कहीं पहुंचना है, लेकिन हमारे अंदर, हम इसको शुद्ध लालच कहते हैं यहाँ पर, कि हमारे अंदर लालच खुद के प्रति नहीं है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरे को वहां जाना है, लेकिन हमारे अंदर लालच होता है अपोजिट डायरेक्शन में। हम उसको कहते हैं आप इसको टर्न कर दो, कि आप इसको कैसे टर्न करो कि मुझे वहां नहीं पहुंचना है, लेकिन मुझे दुनिया को वहां पहुंचाना है, मुझे लोगों को वहां पहुंचाना है। तो हमें, अगर हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी में, या हमारे देश में, या हमारे हमारे वर्ल्ड में इस चीज की कमी है, ये चीज होनी चाहिए, ये एक बहुत जरूरी आइटम है, बहुत नेसेसरी चीज है, लोग जो है आज ऐसा कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ऐसा होना चाहिए, ताकि हर एक को वो सुविधा प्राप्त हो, ताकि हर एक जो है एक लेवल आगे बढ़े। तो इसमें हम ये नहीं सोचते कि मैं एक लेवल आगे बढ़ूं, दूसरे नीचे चले जाएं, मैं आगे बढ़ जाऊं,
तो ये पर्सनल लालच की बजाय, पर्सनल ग्रीड की बजाय, हम इसको कहते हैं एक शुद्ध प्योर ग्रीड रखो। प्योर ग्रीड क्या रखो कि मैं आगे नहीं, लेकिन दुनिया आगे बढ़े। तो उस वे में अगर हम आगे बढ़ते हैं, उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं कि सोसाइटी को मेरे इस आइडिया से या मेरे इस काम से क्या बेनिफिट होने वाला है, तो आपका प्रॉफिट जो है डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि आप दुनिया को कुछ दोगे, समाज को कुछ दोगे, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ करोगे। और इसमें हमारा खुद का भी आगे बढ़ना, हमारा खुद की प्रोग्रेस भी उसमें मर्ज होती है, उसके अंदर समाहित होती है। उसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता, लेकिन वो ऑटोमैटिकली होता है, ऑटोमैटिकली होता है। तो जब हम जैसे ब्रह्मा कुमारीज यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमने हर एक के अंदर ये भावना जरूर देखी है, ये फीलिंग हमने बहुत लोगों के अंदर देखी कि आप जो है अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करो, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या योगदान हमारा हो सकता है। तो ये एक सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, खुद के लिए एक बहुत अपनी एक्सीलेंस को, अपने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आज भी जब हम कुछ काम करते हैं ना, जो एक एक्टिविटी हम बहुत बार कराते हैं, हम लोग फिजिकली आप लोगों के साथ होते तो एक्टिविटी जरूर कराते थे। आई होप अगर आपके पास टाइम हो ना, और आपकी इस तरीके की कोई आप इसकी कोई टीम बिल्डिंग मीटिंग्स होती है, या फिर ऐसा कैंप होता है, तो उसमें वो एक्टिविटी करना। हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली 2 लोगों को एक साथ बिठाते हैं, कोई भी कोई भी 2 लोगों को एक साथ बिठाते हैं। तो वो 2 लोगों से कहते हैं आपको ना आपस में बातें करनी है, यू जस्ट हैव टू कन्वर्स विद ईच अदर। और आप कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी बात करो, चाहे कोई एम्प्लॉई है, उसका बॉस है, या कोई भी है, हुएवर इट इज, जिसके सामने आपको बिठाया जाएगा, आपको उससे बातें करनी है, उसके बारे में पूछो, सवाल जवाब करो, एक दूसरे से नॉर्मली बात करो, लेकिन आपको कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और वो शब्द है मैं, मेरा और मुझे। तो आपकी जो भी बातें होंगी, उन बातों में आपको ये 3 शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ना आपको मैं शब्द का प्रयोग करना है, ना मेरा, ना मुझे। अच्छा, जिसने भी अगर वो शब्द बोल दिया, तो वो उस सीट से हट जाएगा। अगर आपने में से किसी, दोनों में से किसी एक ने भी वो शब्द का प्रयोग कर लिया, उसके मुख से मैं, मेरा या मुझे निकल गया, तो वो हार गया उस कॉन्वर्सेशन में। तो कौन जो है 2 सीट्स पर लंबे समय तक बना रहता है, जो मैं, मेरा, मुझे यूज नहीं करता है, तो वो कंपटीशन इस तरीके का होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे से निकलवाते हैं कि सवाल इस तरीके से करेंगे कि भाई दूसरे के मुख से मैं, मेरा, मुझे निकले। तो बेसिकली जो आइडिया है इस एक्टिविटी का, वो आइडिया ये होता है कि हम कितना, जब क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक वर्क प्लेस पे काम करते हैं, तो हम लोग सेल्फ सेंटर्ड होकर के वहां बैठे हैं, अपनी खुद की प्रोग्रेस के लिए वहां बैठे हैं, अपने आप को प्रमोट करने के लिए वहां बैठे हैं, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं उसका हिस्सा बन के बैठे हैं और उसकी प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो जहाँ हम कितना फोकस्ड हैं उस बात को लेकर, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी हम ये शब्द भुला नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो हम लोग कहते हैं कि आप मैं, मेरा, मुझे की बजाय शब्द का इस्तेमाल करो हम, वी, वी एज अ पावर, वी टुगेदर। सो दिस फीलिंग ऑफ बीइंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंडस्ट्री में, मैं अकेला नहीं होता हूं, हम सब होते हैं, हम सब उसका हिस्सा हैं, तो हम सब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आज मैं ब्रह्मा कुमारीज में बैठी हूँ, तो मैं इंडिविजुअली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका हिस्सा हूँ। तो जब हम किसी से भी मिलते हैं, तो हम कहते हैं हम संस्था में ऐसा चलते हैं, हम संस्था में ऐसा करते हैं, हमारा ये बिलीफ है, तो शब्द बदल जाते हैं। तो वहां हम मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये एक सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए जब हम एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। फिर बात आती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं
कि बहुत बार बहुत सारी सिचुएशंस हमारे साथ होती है। दुनिया बहुत फास्ट रीति से बदल रही है, और जब हम अपने ऑफिस से घर वापस आते हैं, घर वापस आके तो मैं ही होता हूँ। तब हम एक फैमिली में हैं, एक इंस्टीट्यूशन में हैं। फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है, कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो हम हमेशा एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। जब हम बाहर जा रहे हैं, तब हम जिस वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, तब हम उसका हिस्सा हैं। जब हम परिवार में आते हैं, तो परिवार एज एन इंस्टीट्यूशन है। और आजकल क्या है, हम परिवार को एक इंस्टीट्यूशन की तरह मानते ही नहीं हैं। इसलिए हम परिवारों से अलग हो जाते हैं। हम मानते ही पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी। अभी तो फैमिलीज ब्रेक होती चली जा रही हैं। और हर कोई जो है, अगर बच्चे भी हैं साथ में हैं, धीरे धीरे करके वो भी अपनी अपनी राह पकड़ लेते हैं। तो हम अकेले ही काम कर रहे हैं। जहाँ फैमिली एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 4-5 लोग हों, मिनिमम मिनिमम 4-5 लोग हों एक फैमिली में, है ना। लेकिन अभी क्या है, हम अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए जो एक हमारा सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है, अकेले रहने की भावना है, अकेले चलने की भावना, अकेले के बारे में सोचने की भावना, अकेला ही हूं मैं हर तरीके से, इसलिए अपनी खुद की प्रोग्रेस के लिए ही काम कर रहा हूँ, खुद के लिए ही काम कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग, हमारे सोचने का तरीका भी, या हमारा बिलीफ सिस्टम भी खुद के प्रति ही बढ़ गया है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम दूसरों को के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरों को हम क्या दे रहे हैं एज अ सोसाइटी। हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं? क्योंकि हम सब अकेले खड़े हैं, अकेले के लिए हम काम कर रहे हैं। तो खुद सेल्फ एम्पावरमेंट, खुद का एम्पावरमेंट इसीलिए बहुत जरूरी है, बिकॉज वी एक्चुअली आर अलोन। और अपने खुद के लिए जो कर रहे हैं वो अकेले कर रहे हैं, उसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम बहुत बार जब ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती है जिसको हम टैकल नहीं कर पाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली कि मुझे क्या करना चाहिए, तो हम वी ऑलवेज succumb टू टेक सर्टेन डिसीजंस विच आर नॉट राइट। तो हम ऐसी सिचुएशन को क्यों नहीं हैंडल कर पाते हैं? क्या, कहाँ चली जाती है हमारी शक्ति? कैसे चली जाती है, कहाँ चली जाती है हमारी शक्ति? इंडिविजुअल लेवल पे हम इतने वीक क्यों हैं? तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक संतरा है, तो संतरा, आप मान लो आप सब संतरे हो। संतरे में क्या होता है, जब आप संतरे को निचोड़ते हो तो क्या निकलता है? जूस निकलता है। तो जूस जो है दो तब टाइप का हो सकता है, या तो खट्टा हो सकता है या मीठा हो सकता है। तो संतरे का जूस या खट्टा है या मीठा है, तो जूस तो जरूर निकलेगा संतरे को निचोड़ोगे तो जो जिस चीज के अंदर जो भरा होता है वो बाहर निकलता है। अब जिंदगी जब हमें निचोड़ती है, तो हम सब, मान लो हम सब संतरे हैं, इफ वी आर ऑल ऑरेंजेस, तो हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? हमारे अंदर क्या भरा हुआ है जो बाहर निकले? जब जिंदगी हमें निचोड़ेगी, तो हमारे अंदर से क्या बाहर निकलेगा? तो हमें आज ये सोचना है कि अगर मान लो मैं एक संतरा हूं, एक सेकंड के लिए मान लो, और आज कोई परिस्थिति मेरे सामने आए, कोई भी बात आए मेरे सामने, तो जिंदगी मुझे निचोड़ रही है, तो मेरे अंदर से क्या बाहर निकलेगा? क्या मेरे अंदर से कड़वाहट बाहर निकलेगी? अगर कड़वाहट बाहर निकल रही है, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, डिप्रेशन मुझे हो रहा है, क्योंकि जिंदगी निचोड़ती है, हर व्यक्ति को निचोड़ती है। हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन सबके साथ होता है। जिंदगी हर एक को निचोड़ती है, हर एक की परीक्षा जरूर लेती है। हम सब एग्जाम्स पास कर 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 के आज यहाँ पहुंचे हैं। जो लोग एग्जाम पास नहीं करना चाहते हैं, जो लोग पढ़ाई नहीं करना चाहते, एग्जाम्स में बैठना नहीं चाहते, वो क्या करते हैं? वो कुछ और ही करते हैं। वो किसी लायक नहीं होते हैं जिंदगी में। तो हम सब जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्स पास कर करके यहाँ पहुंचे हैं। तो जिंदगी ने हर मोड़ पर हमें निचोड़ा जरूर है, हमारी परीक्षा जरूर ली है। तो आज जब हमारी परीक्षा रियल फॉर्म में आए, तो हमारे अंदर से क्या बाहर निकलता है?
तो जो हमारे अंदर भरा हुआ होगा बाहर वही निकलेगा। तो अगर कड़वाहट भरी हुई है तो वो बाहर निकलेगी, फ्रस्ट्रेशन भरा है, गुस्सा भरा है तो गुस्सा बाहर निकलेगा। बहुत बार हम रिएक्टिव होते हैं, गुस्सा कर देते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या ये ऐसा होता है, ये तुम्हें समझ में नहीं आता ये ऐसा होगा, इसको मैंने कितनी बार समझाया है कि ये ऐसे करना है, ये फिर भी वैसे ही करता है। तो ये सब निशानियां हैं इस बात की कि हमारे अंदर क्या है। तो हमारे अंदर हम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम अंदर डालते हैं। ऑन अ डेली बेसिस हम कुछ ना कुछ अपने अंदर भरते जाते हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस है, हमारे जो जिस तरीके से हमने किसी के साथ डील किया, हमने अगर चोरी की या हमने झूठ बोला, हमने मैनिपुलेट किया, हाँ, तो वो सारी बातें अंदर भरती चली जाती है। और हम उसको भरते इस तरीके से हैं कि आज के समय के अनुसार यही ठीक है, आज के समय के अनुसार ये सब बातें ही से ही काम चल सकता है। तो हम अपने आप को एक इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट में एक इम्परफेक्ट संतरा बना रहे हैं, जिसको जिस दिन भी निचोड़ा जाएगा उसके अंदर से से निकलेगी खटास, उसके अंदर से कड़वाहट, उसके अंदर से निकलेगा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, तो ये सब निकलेगा। तो हम और दूसरे के अंदर से भी यही निकलता है, जब हम किसी और के साथ ये देखते हैं तो उसके अंदर से भी यही निकलता है। तो इसीलिए ऑन अ डेली बेसिस हमें ये चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं क्या चीज को अंदर ले रहा हूँ, मैं क्या भर रहा हूँ अंदर। इसलिए हमें अपने इनपुट्स को, जो भी हम संकल्प करते हैं, संकल्प कर रहे हो, क्या कौन सा संकल्प कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसका उसके अनुसार कोई एक्शन होता है या नहीं होता है। हाँ, और दूसरे की कौन सी बात को अंदर ले रहे हो, कौन सी भावनाओं को अंदर भर रहे हो, उसको हमें आज ही उस पे रोक लगानी पड़ेगी। आज ही उस पे रोक लगानी पड़ेगी। वी नीड टू हैव फिल्टर्स। आजकल हमारे सबसे ज्यादा जो मोटिवेटिंग और एम्पावर करने वाले जो आइटम्स हैं इस सोसाइटी में, वो बहुत चेंज हो चुके हैं। जैसे कि आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करता है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। तो पहले के ज़माने में जब पिक्चरें बना करती थी, तो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता था, प्रोटैगनिस्ट का मतलब आप जानते हैं? प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मेल एक्टर या फीमेल एक्टर, जो हीरो जिसको हम कहते हैं, हीरो या हीरोइन, पिक्चर की ये हीरो है, ये पिक्चर की हीरोइन है। तो जो प्रोटैगनिस्ट होता था, हीरो हीरोइन जो होते थे, वो बहुत आइडियल हुआ करते थे। बहुत आइडियल मतलब कि उनको देख कर के हम सीखते थे कि हमें भी ऐसा अच्छा बेटा बनना है, या हमें ऐसा अच्छा पति बनना है, या हमें ऐसा अच्छा भाई बनना है, हमें राम की तरह बनना है, ये राम जैसा भाई है, ये राम जैसा बेटा है, हमें ऐसा बनना है। तो हमें कम से कम एक इंस्पिरेशन तो मिलता था कि इस फलानी पिक्चर में हमने इस हीरो को देखा और ये हीरो एक आइडियल हीरो है, ये सबके साथ बड़ा रिस्पेक्ट से बात करता है, इसके अपनी फैमिली में बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट है, फैमिली में सबके साथ बहुत निभाता है। तो कम से कम हमें एक आइडियोलॉजी वहां से मिलती थी कि ये हीरो हीरोइन होते हैं। आज वो सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। आज वो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। आज जो हमारी फिल्में बनती हैं, जिनको हम देखते हैं, और वंडर की बात ये है कि वो फिल्में चलती भी ज्यादा हैं अभी, जबकि उनको अपोजिशन होना चाहिए, उस फिल्मों को हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज अपोजिशन की बजाय लोग सबसे ज्यादा वही पिक्चरें देखते हैं, ऐसे एक्टर्स को फॉलो करते हैं जिसमें एक्टर्स गालियां दे रहा है, मारपीट कर रहा है, बहुत वॉयलेंस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ये कितना कितना जिसको कहते हैं, हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही ज्यादा अ, मतलब डीमोटिवेटिंग और डीमोरलाइजिंग, जो हम कहें कि चीज हो रही है, कि आजकल हम ऐसे लोगों को देखना चाह रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, हम वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से, और हम उनको अपना आइडियल भी मान रहे हैं। तो हम उनसे क्या सीख रहे हैं? हम उनके डायलॉग्स को बोलते हैं। जब हम ऐसी फिल्में देखते हैं, हम अपने रोजमर्रा में ऐसे डायलॉग्स को इस्तेमाल करते हैं कितनी बार। तो हमारे सोचने का तरीका, चलने का तरीका कैसा होगा? तो कैसे ऑरेंजेस बनेंगे? कौन से ऑरेंजेस बनेंगे?
जो कि जिसके अंदर से टाइम निकलने के बाद क्या हो निकलेगा। आजकल हमारी जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, हम क्राइम ये नहीं मानते कि आपने किसी का सिर्फ मर्डर कर दिया, नहीं। जब हम देखते हैं ना कि कोई बहुत गुस्सा कर रहा है किसी के ऊपर, तो वो भी एक क्राइम है। गुस्सा करना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। कुछ लोग तो कहते हैं कि गुस्से के बिना काम ही नहीं हो सकता है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी तो कहती है गुस्सा करना एक क्राइम है। आध्यात्मिकता में टू बी एंग्री और अपने आप को ही हानि पहुंचाना, क्योंकि गुस्सा करना, डिप्रेशन में जाना, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना, टॉक्सिक थॉट्स क्रिएट करना। हम बहुत बार अपनी बातों में कहते हैं इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर थोड़ी देर भी मुझे इसके साथ रखा गया तो मैं जाकर के आत्महत्या कर लूंगा। तो ये इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना भी एक क्राइम है। तो हम किस तरीके की अपनी भाषा इस्तेमाल करते हैं, हमारी लैंग्वेज चेंज होती जा रही है, हमारा सोचने का तरीका चेंज होता जा रहा है। तो हमारी कितनी शक्ति जो है इन सब बातों में हम देखते हैं धीरे धीरे करके द पावर लेवल इज गोइंग सो लो। और कहाँ हम सेल्फ एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो एक है अपने अंदर शक्ति भरना, दूसरा है अपने अंदर की शक्ति को क्षीण करना, निकाल देना। तो हम हमारा जो कंटेंट है या जो चीज हम देख रहे हैं सामने, वो किस लेवल का है, हम किस लेवल के लोगों से मिलते हैं, हमारा साथ किन किन लोगों के साथ है, हम क्या चीज हम बार बार अंदर ले रहे हैं, ये सब उस पे डिपेंड करता है हमारे सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ। तो what kind of content we are watching, what kind of people we are being with, हम किन लोगों का साथ कर रहे हैं, क्या हम अपने अंदर भर रहे हैं पूरे समय। तो उससे हमारा खुद की जजमेंट आप खुद ही कर सकते हो कि मेरे अंदर का ये जो बैटरी है, पावर की बैटरी, ये किस टाइप की होगी, कितनी होगी, लो होगी, डिम होगी या ज्यादा होगी। तो सुबह उठ करके हम सबसे पहले क्या करते हैं, किस क्या थॉट आता है, और वो थॉट वही आएगा जो सोच करके आप रात को सोए थे, रात को क्या देख करके सोए थे, रात को क्या मोबाइल फोन में बहुत कुछ चेक कर रहे थे, क्या चेक कर रहे थे। सुबह को उठोगे तो उसी थॉट के साथ उठोगे। इसलिए हम बहुत बार यही कहते हैं कि अपने मोबाइल को सोने से 1 घंटे पहले साइड कर दो, देखो ही नहीं। और इसको ट्राई करके देखो, ये एक एडिक्शन है, इट्स अ पार्ट ऑफ एडिक्शन, कि हमारे हाथ में जब तक मोबाइल फोन जाता नहीं है, आता नहीं है हमारे हाथ में, तब तक हम किसी चीज की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इतना एडिक्शन हो गया है। तो कैन वी गेट रिड ऑफ इट, क्या हम इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उन चीजों को से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करो जो हम पे हावी हो रही है, जिसके बिना हम काम नहीं कर सकते। ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। कि अगर रात को मेरे पास समय मिल रहा है, मुझे पूरे दिन तो मैंने चेक नहीं किया, अभी मेरे पास टाइम है, अभी तो मैं देख करके जितना मर्जी चाहे देख करके बंद करूंगा। तो थोड़ा सा रात के टाइम सोने से पहले 1 घंटे पहले ट्राई करो 21 डेज के लिए, कि 21 डेज तक 1 घंटे पहले मोबाइल फोन को रख दूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा सोने से पहले। ट्राई करके देखो, ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन, कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो अपनी पावर लेवल आपको खुद ही समझ में आएगी कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। और अगर आपको लग रहा है कि 2 दिन तो मैंने किया, थर्ड डे मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत जरूरी है, मुझे देखना ही है, तो आप खुद ही अपने बारे में अनुमान लगा सकते हो कि शक्ति का लेवल क्या है, शक्ति का लेवल क्या है। उसी प्रकार से बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां हम खुद ही जज कर सकते हैं। खुद ही जज कर सकते हैं कि किस किस चीज के बिना मेरा काम चल सकता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे अफेक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती है। तो हम किस एटीट्यूड के साथ सुबह को उठते हैं
और किस एटीट्यूड के साथ हम रात को सोते हैं। तो हम बहुत बार कहते हैं कि जब आप सुबह को उठते हो तो 3 देवताओं की बड़ी पूजा करते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को मानते हैं ना सभी। ब्रह्मा मीन्स द क्रिएटर, द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। विष्णु मीन्स द लॉर्ड ऑफ सस्टेनेंस एंड शंकर मीन्स द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये जो इनका जो पर्पस है, हम कहते हैं कि हर व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है, क्योंकि हम सबके अंदर बड़ी क्रिएटिव पावर है। आप सबने, आप दुनिया को देखो, आपको लगेगा कि सचमुच में ये किसी ऊपर से नहीं आया है। इतनी 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 टेक्नोलॉजी, इतना डेवलपमेंट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना मैनेजमेंट, इतनी इतना इतना सब कुछ जो हम देख रहे हैं, ये सब आसमान से थोड़ी ना टपका, ये हम सब ने बनाया है, मिलकर के बनाया है। तो हम सबके अंदर कितनी क्रिएटिव पावर है। इमेजिन करके देखो कि हम सबकी कितनी क्रिएटिव पावर है। हम सब ने दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो ये हम सबकी शक्ति है, क्रिएटिव पावर हम सबके अंदर ब्रह्मा है। वी ऑल आर ब्रह्मा, वी ऑल आर क्रिएटर्स। सेकेंडली, सस्टेनेंस करने की पावर भी हम सबके अंदर है। आज दुनिया को हमने सस्टेन किया हुआ है, तो सस्टेनेंस करने की पावर भी हमारे अंदर है, और डिस्ट्रॉय करने की पावर भी हमारे अंदर है। तो डिस्ट्रक्शन की जब बात आती है तो हम डिस्ट्रॉय करना भी जानते हैं, है ना। तो ये तीनों पावर्स हमारे अंदर है, लेकिन अब ये तीनों पावर्स का बहुत बार हम गलत इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी पर्सनल लाइफ की बात आती है तो एज अ क्रिएटर दुनिया में क्या हो रहा है हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम पर्सनली खुद के लिए हम बात करते हैं। एज अ क्रिएटर हमारी पर्सनल लाइफ में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, और सोसाइटी के लिए हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। दोनों तरीके से एज अ क्रिएटर सुबह को उठ करके आपको जनरेशन का, क्रिएशन का काम करना है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि मुझे अपने लिए क्या चाहिए, आज पूरा दिन मेरा कैसा होगा। क्रिएट करो न्यू थॉट्स, क्या बनना चाहते हो। लेकिन अगर हम सुबह उठ करके ये सोच रहे हैं, अरे कल तो उसके साथ बड़ा खराब हुआ था, उसका बेड़ा गर्क हो, है ना, गो टू हेल, ये सब चीजें अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हम उसके लिए भी क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए भी क्रिएट कर रहे हैं, खुद के लिए भी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि हेल में केवल वो नहीं गिरेगा, हम भी साथ में गिरेंगे, है ना। तो इसीलिए हम सुबह उठ करके क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एज ब्रह्मा बन जाओ सुबह सुबह, और बहुत सारी दुनिया को सामने रखो अपने। प्लेस द होल वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू एंड क्रिएट मैजिक। मैजिक क्रिएट करो। कैसी दुनिया चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, कैसी दुनिया चाहते हो, तो वो क्रिएट करो सामने, प्रत्यक्ष रूप में क्रिएट करो। जस्ट टेक 10 to 15 minutes एंड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ल्ड। और उस वर्ल्ड में आप हो, अपने आप को देखो उस दुनिया में रहते हुए। अगर आप चाहते हो दुनिया में प्यार हो, शक्ति हो, शांति हो, तो उसको क्रिएट करो, उसको देखो, विजुलाइज करो, कीप अ विजन। ऐसी दुनिया का विजन करो कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, द वर्ल्ड शुड बी लाइक दिस। तो सुबह उठ करके हमें 15 मिनट्स ब्रह्मा बन करके ऐसी दुनिया को क्रिएट करना है। हम सोचते हैं ना, हम क्या बना, क्या सोचे, मेडिटेशन में क्या करें, क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू। तो सुबह को हमारा ये काम हो गया। अब पूरा दिन हमें क्या करना है, पूरा दिन जो आपने क्रिएट किया है उसको सस्टेन करना है पूरे दिन में। जब आप अपने ऑफिस पे पहुंचते हो, घर से बाहर निकलते हो, तब आप विष्णु बन के बाहर निकलो। विष्णु मीन्स द वन हु इज सस्टेनिंग एवरीथिंग। सस्टेनेंस करनी है, आपने रचना तो रच दी, पर उसको सस्टेन कौन करेगा। कि आपने तो सोचा था कि दुनिया ऐसी होगी सुबह को, और जब घर से बाहर निकले और देखा बड़ा कचरा फैला हुआ है सब जगह, लोग जो है रास्ते में निकलते हुए भी कोई ऊटपटांग बात कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। ऑफिस में पहुंचे, ऑफिस में पहुंच के देखा, अरे भैया पॉलिटिक्स चल रही है अलग टाइप की। तो वो जो दुनिया आपने विजुलाइज की थी सुबह को, वो तो भूल गई।
नहीं ये रियलिटी है, ये तो जो दिख रहा है ना यही रियलिटी, ये दुनिया असलियत में तो ऐसी है जैसी मेरे सामने है, नहीं। वो सब तो सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, मैं इस सोचने से थोड़ी ना होता है, नहीं बिल्कुल सही बात है, सोचने से नहीं होता, लेकिन हमें करना भी है ना। तो पूरा जो सुबह आपने सोचा है, आपको उसी दृष्टि से पूरे दिन दुनिया को देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपके लिए वो सपना साकार होगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज बने हैं ना, उन्होंने दुनिया को पहले अपने नजरिए से, जब वो कुछ भी नहीं थे, वो क्या देना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे, उन्होंने डेली उस नजरिए से अपने आप को देखा है। आप किसी के भी एग्जाम्पल्स ले लो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपने नजरिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखा है, ना कि दुनिया ने उन्हें जो दिखाया उस नजरिए से उन्होंने देखा, नहीं। तो हमें अपना विजन खुद बनाना है कि मुझे दुनिया कैसी चाहिए, मुझे लोग कैसे चाहिए, और जो हम, जैसे हम दुनिया को दिखाते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं, दुनिया भी हमें उसी नजरिए से देखती है। अगर हम हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छाई की दृष्टि से देखते हैं, वैसे ही लोग हमें मिलते हैं और वैसे ही एनर्जी हमारे पास लौट के वापस आती है। तो हम एज बहुत बड़ा एनर्जी बॉल है, आप ये समझो कि हम सब एक बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी बॉल्स हैं। अभी हम संतरे नहीं है, एनर्जी बॉल्स हैं। तो एनर्जी बॉल्स होकर के हम कौन सी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं? तो जो एनर्जी बॉल, जो एनर्जी आप बाहर दुनिया में फेंक रहे हो, वही एनर्जी रिटर्न होके आपको वापस आने वाली है। तो इसलिए सस्टेन करो अपनी पावर को, जो आपने क्रिएट किया है, नाउ यू हैव टू सस्टेन इट फॉर द होल डे। दुनिया को उसी दृष्टि से देखो पूरा दिन। और बहुत सारे आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होंगे। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी ने आज आपकी इंसल्ट कर दी, किसी ने बहुत डांट लगाई, किसी ने बहुत कुछ गलत किया आपके साथ, बहुत धोखा मिल गया, जो अनएक्सपेक्टेड था वो हुआ मे बी। अब आप वो एनर्जी को जो आपको बाहर से मिली, क्योंकि वर्ल्ड इम्परफेक्ट है अभी, वो एनर्जी को एक साथ रखो, यहाँ रखो। जब आप रात को बैठते हो, रात को सोने से पहले, अब हमें शंकर बन जाना है। रात को सोने से पहले हमें शंकर बन के, जो नेगेटिव एनर्जी बाहर से मिली है, अपने अंदर उस शंकर की डिस्ट्रक्टिव पावर को देखो, और उन सारे संकल्पों को, जो भी नेगेटिव मिला, डिस्ट्रॉय कर दो, सबको डिस्ट्रॉय कर दो। ये कुछ हुआ ही नहीं, भस्म कर दो, जला के भस्म कर दो, ताकि ये कोई भी नेगेटिव बातें जो आज मिली, वो नेक्स्ट डे में ट्रांसफर नहीं हो जाए। नेक्स्ट डे उसका बैगेज, वो नेगेटिव बातों का बैगेज मुझे अगले दिन नहीं चाहिए। उसको नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है हमको, उसके साथ नहीं चलना है। इसलिए नाइट में जो कुछ किसी ने गलत किया या कुछ भी हुआ, उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि फलाना व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है, आपके प्रति उसको कुछ भी फीलिंग नहीं है, तो एटलीस्ट मेंटेन अ डिस्टेंस, कि उसके पास से और नेगेटिविटी नहीं चाहिए, उससे डिस्टेंस मेंटेन करो। एक सेपरेशन कर दो कि वहां से जो एनर्जी आ रही है, वो एक टाइम तक जो है ना वो नेगेटिव रहेगी, उसके बाद वो न्यूट्रल होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे करके न्यूट्रल होनी शुरू हो जाएगी। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। तो ये डिस्ट्रक्शन का जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शंकर बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में लोग इन्हीं 3 शक्तियों का अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड व्यक्ति, एक ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति इन तीनों शक्तियों का सही इस्तेमाल करता है, और ये शक्ति हम सबके पास है, टू क्रिएट, टू सस्टेन एंड टू डिस्ट्रॉय। So how are you going to use these 3 powers of yours on a daily basis? That is really going to empower you, and it's going to ultimately work to bring excellence in whatever you do. जो कुछ भी आप कर रहे हो,
उसमें एक्सीलेंस, परफेक्शन अपने आप आता चला जाएगा। तो ये तीन हम चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, so now we have got just 5 minutes left. So can we meditate for 2-3 minutes? And if you have any question, if anyone is having any question, then आप हम पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? ऑल राइट, तो हम थोड़ी देर के लिए साइलेंस में बैठेंगे। साइलेंस में हम इन्वोक करेंगे, अपने अंदर इन पावर्स को इन्वोक करेंगे, और हम देखेंगे कि हमने अपनी लाइफ में किन किन को रोल मॉडल बनाया है, किन से हम एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस लेते हैं, किन से हम सीखते हैं। अपने मन को एकदम शांत करो। शांत मन से अपना सारा फोकस उस एनर्जी की तरफ जो आप हो। हम बहुत पावरफुल, यहाँ पर भ्रकुटी में बैठी हुई, in the center of the forehead, we are very powerful energy balls. I have the power to create the most beautiful things in the world for myself and for others. सभी के लिए, सारे विश्व के लिए नई ऊर्जा, नई शक्ति देने की पावर मेरे अंदर है। मैं अपने जीवन को भी बहुत शक्तिशाली बना रही हूँ। And I am leaving an impact in everybody's life. मेरी शक्ति का प्रभाव दूसरे के जीवन पे भी पड़ता है, because I become a living example for everybody to follow. And then when I have created such beautiful thoughts for myself and the world, I'm sustaining all these thoughts. I have the power to live by all those thoughts of mine. मैं अपने हर संकल्प को जी रही हूँ, जी रहा हूँ। मैं जो सोचता हूँ, जो बना रहा हूँ, उसमें रह रहा हूँ, उसके ऊपर चल रहा हूँ। मेरे संकल्पों में सबकी भलाई है, सबका कल्याण है, सबके अंदर खुशी, प्यार, नम्रता, सबके प्रति रेस्पेक्ट है। I'm sustaining these thoughts. मैं अपने इन संकल्पों से सभी की पालना करता हूँ। My thoughts become my actions. And then all the negativity that I see, that I experience from the world outside, I destroy it.
so that I don't carry forward it. I don't keep the negatives, anybody's negative in my heart, in my mind. My mind, my heart is so pure. मेरे दिल के किसी कोने में भी किसी के प्रति कोई नेगेटिव भावना नहीं है. मेरा दिल एकदम शुद्ध है. I have a pure heart. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much for listening. Thank you, sister. So, on the behalf of everyone, thank you for coming to Uthan and delivering such a wonderful session today. And thank you to everybody else for joining in. We'll meet the next week for the fourth session. Thank you. Have a nice day. Om Shanti. Om Shanti.